بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلباء، آج جو ہم نے آگے لیسن پڑھنا ہے، سبق پڑھنا ہے، اور یہ لیکچر جس موضوع سے متعلق ہونا ہے اس کا موضوع ہے قطعات، اور پیپر پیٹرن کے مطابق ہم نے نظم کا عنوان لکھنا ہوتا ہے، یعنی نظم کا عنوان کیا ہے۔ فرسٹ ایئر میں یوں تھا کہ اگر قطعات دیے تھے تو ہر قطعے کا ایک علیحدہ عنوان تھا۔ مثال کے طور پر شاعر، ریڈیو، غفلت، تو ہم وہاں 3 ٹائٹل بنا لیتے تھے کہ نظم کا عنوان قطعات، قطعے کا عنوان شاعر ہے، غفلت ہے، ریڈیو ہے، اخباری اشتہار ہے، تو قطعے کا عنوان بھی لکھ دیتے تھے، اور پھر شاعر کا نام بھی لکھ دیتے تھے۔ وہ مرزا محمود سرحدی کے قطعات ہیں فرسٹ ایئر میں۔ ادھر سیکنڈ ایئر میں قطعات 4 دیے گئے ہیں، ان کے علیحدہ سے کوئی عنوان نہیں ہے، حالانکہ نظم کا نام قطعات نہیں ہے، لیکن پیپر پیٹرن کے مطابق کیونکہ نظم کے عنوان کا ہمیں ایک نمبر ملنا ہے، اگر وہ قطعات میں سے ہی ایک قطعہ تشریح کے لیے دے دیتا ہے تو وہاں ہم نظم کا عنوان قطعات لکھیں گے اور واضح بیان کر دیں گے اپنی تشریح میں کہ پیٹرن کے مطابق ہم نے نظم کا عنوان قطعات لکھا ہے، جبکہ یہ جدا جدا قطعے ہیں۔ تو میں بھی اسی طریقے پر وائٹ بورڈ پر تحریر کر دیتا ہوں۔ نظم کا عنوان، کیونکہ پیپر پیٹرن ایسے بنا ہوا ہے کہ انہوں نے جدا جدا نمبر لکھ کے دیے ہیں۔ نمبر 1 نظم کا عنوان، نمبر 2 شاعر کا نام، اور پھر تشریح 8 نمبروں کی، یعنی ایک شعر 4 نمبر کا، ایک دوسرا شعر 4 نمبر کا۔ تو نظم کا عنوان قطعات، شاعر کا نام، انور مسعود، انور مسعود 1935 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1935 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش ہے گجرات کی۔ انہوں نے MA فارسی کے ساتھ کیا اور اعزاز کے ساتھ انہوں نے MA کا ایگزام پاس کیا، امتحان پاس کیا۔ عملی لائف میں یہ فارسی کے لیکچرر سلیکٹ ہوئے۔ پہلی تقرری ان کی گورنمنٹ ڈگری کالج ڈیرہ غازی خان میں ہوئی، یہ یہیں پر آئے، اور بعد میں مختلف کالجز کے اندر یہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ انور مسعود کی بیگم، انہوں نے بھی MA فارسی کیا ہوا تھا، وہ بھی فارسی کی لیکچرر رہیں، اور ان کی ایک بیٹی بھی اب فارسی کی لیکچرر ہے۔ انور مسعود انہوں نے 3 زبانوں میں شاعری کی، فارسی میں بھی شاعری کی، پنجابی میں بھی شاعری کی، اور اردو میں بھی شاعری کی۔ ان کی سنجیدہ شاعری بھی ہے، طنز اور مزاح پر مبنی شاعری بھی ہے۔ تو جو آج قطعات ہم نے پڑھنے ہیں وہ طنز اور مزاح پر مبنی ہیں۔ اب طنزیہ شاعری یہ نہیں کہ صرف ہنسانے کے لیے ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسے کوئی حکیم، طبیب، ڈاکٹر کڑوی گولی، کوئی میٹھا شیرہ لگا کر کھلا دیتا ہے کہ کڑواہٹ منہ کے اندر محسوس نہ ہو، اس طرح طنز گو شاعر ایک مشکل بات، معاشرے میں پائی جانے والی خرابیاں، معاشرے میں پائے جانے والے معائب، انہیں
हंसी मजाक का लिबादा उड़ाकर वो मुआशरे में बयान कर देता है। हालांकि वो बात होती मुश्किल बात है, वो मुआयब वाली बात है और वो परेशानी वाली बात है, लेकिन वो मजाक के पर्दे में ओढ़ कर मुआशरे की समातों को मिलती है, यानी उड़ी हुई मिलती है सुनने को। वगरना अनवर मसूद ने खुद कहा है, एक मकाम पर वो कहते हैं कि बड़े नमनाक होते हैं अनवर कह कहे तेरे, बड़े नमनाक होते हैं अनवर कह कहे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे। यानी जो तू तंजो मज़ाह की शायरी करता है, बज़ाहिर लगता है कि हंसी मज़ाह है और कह कहे हैं, लेकिन इन्हीं कह कहूं के पीछे कोई गम छुपा हुआ है कि जिसे तू बयान करना चाहता है। मैं ऐसा ही एक शेर मिसाल के तौर पर बयान कर देता हूं कि तंजो मज़ाह का शायर किस अंदाज में एक मुश्किल बात को मज़ाह के पर्दे में बयान कर जाता है। अनवर मसूद ही का एक शेर है कि रंगीन हो गया था बहुत ही मुआमला, रंगीन हो गया था बहुत ही मुआमला, फेंका जब उसने फूल तो गमला भी साथ था। तो बंदे को ऐसी मोहब्बत से बचना चाहिए जहां से फूल गमलों समेत मिले। अनवर मसूद जब मुआशरे पर तंज करते हुए हमें नजर आते हैं कि आज के मुआशरे में देख लें कि क्या हो रहा है, तो कहते हैं कि फिर तरतीब भी चेंज होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। उनकी एक गजल के एक दो शेर अनवर मसूद कहते हैं कि मर्द होनी चाहिए खातून होना चाहिए, अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए कि जब हर मामले में आप औरत को आगे लेकर आए हैं तो फिर ग्रामर को भी बदलें, तब्दील करें। मर्द होनी चाहिए खातून होना चाहिए, अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए, यानी ग्रामर बदल लें। और इसी गजल के अंदर एक और शेर के अंदर वो कहते हैं, इंग्लिश हमारे लिए जरूरी है, इंग्लिश हमारे लिए जरूरी है, तो डियर स्टूडेंट्स, अनवर मसूद ने जिस अंदाज में कहा है तो ये अंदाज है तंजो मज़ाह वाला, और ये भी एक हकीकत है कि तंजो मज़ाह वाली शायरी ज्यादा शोहरत पा जाती है बानिस्बत संजीदा शायरी के। अब पहले कते से पढ़ते हैं। अनवर मसूद का पहला कता है, ये कता नंबर 1। जो चोट भी लगी है, जो चोट भी लगी है वो पहली से बढ़ के थी, वो पहली से बढ़ के थी। जो चोट भी लगी है वो पहली से बढ़ के थी, हर ज़र्ब करबनाक, हर ज़र्ब करबनाक पे मैं तिल मिला उठा। पानी का सुई गैस का पानी का सुई गैस का बिजली का खून का।
बिल इतने मिल गए हैं, बिल इतने मिल गए हैं, कि मैं बिल बिला उठा, कि मैं बिल बिला उठा। अजीज तलबा, अब इस कत्ते के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं, पहले मैं उनकी वजाहत कर देता हूं। ये कत्ता नंबर 1, मुश्किल अल्फाज की वजाहत। चोट कहा जाता है ज़र्ब को, यानी अल्फाज मानी की सूरत में मैं लिख देता हूं, चोट ज़र्ब। सदमा भी कह सकते हैं, तकलीफ भी कह सकते हैं। करबनाक तकलीफ देने वाली, तकलीफ देह। अजियत देने वाली, तिल मिलाना, तड़प कर रह जाना, यानी कर कुछ ना सकना, सिर्फ दुख और गम हो, बंदा तड़पता रहे। बिल बिलाना, बिल बिलाना, दर्द की वजह से आहें भरना, डियर स्टूडेंट्स, अनवर मसूद अपने इस कते में कह रहे हैं, जो चोट भी लगी है वो पहली से बढ़ के थी। हर ज़र्बे करबनाक पे मैं तिल मिला उठा, पानी का सोई गैस का बिजली का खून का, बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिल बिला उठा। यानी महंगाई का रोना रोया जा रहा है कि जो भी तकलीफ मुझे पहुंची है, अगर उससे पहले कोई तकलीफ पहुंची तो बाद में आने वाली तकलीफ पहली तकलीफ से बड़ी हुई थी। वो शाक, वो सदमा, वो ज़र्ब पहली से कहीं ज्यादा होती थी, और मैं हर तकलीफ देने वाली ज़र्ब या सदमे के बायस तड़प उठता था। अब ये तड़पना किस बायस है? कहते हैं कि पहले पानी का बिल आया, वो इतना ज्यादा कि मैं आह भर कर रह गया। फिर सुई गैस का बिल आ गया, वो भी ज्यादा। फिर बिजली का बिल आ गया, वो भी ज्यादा। फिर खून का बिल आ गया। यानी बिल इतने मिल गए हैं कि मैं गम और दुख के सदमे के सबब सिर्फ आहें भर सकता था, जबकि मुआशरे में सफेद पोश तबके का जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। एक आदमी मुलाजिम हो, लगी बंधी उसकी तनख्वाह हो, और नाजायज इजाफा बिलों के अंदर डाल दिया जाए, महंगाई को कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, महंगाई आसमान से बातें कर रही हो, तो लगी बंधी तनख्वाह है वो तो पहले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, आगे फिर उधार पर गुजर बसर करनी होगी। फिर वो जो अगले महीने वाली तनख्वाह आएगी, वो मुलाजिम तो पहले ही उसे खा चुका है, तो कैसे उसकी जिंदगी बसर होगी? तो महंगाई का रोना रोया जा रहा है।
हुकूमतों को कहा जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल करो, और कोई असूल और ज़ाब्ता होना चाहिए कि अगर जिस निस्बत से महंगाई बढ़ रही है या तो फिर उसी निस्बत से तनख्वाह बढ़े, और अगर उस निस्बत से तनख्वाह नहीं बढ़ रही तो कम अज कम महंगाई को कंट्रोल किया जाए कि सफेद पोश आदमी भी ऐशो इशरत की ना सही आराम और सुकून की जिंदगी तो बसर कर सके। अनवर मसूद ने महंगाई से मुताल्लिक एक और कते में एक मकाम पर कहा है कि तेवर दुकानदार के शोले से कम न थे, तेवर दुकानदार के शोले से कम न थे, लहजे में गूंजती थी गिरानी गरूर की, गाहक से कह रहा था जरा आईना तो देख, किस मुंह से दाल मांग रहा है मसूर की। यानी ये मुंह और मसूर की दाल, इतनी कीमती चीजें तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ये तलब कर रहे हो। उसी को उन्होंने तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि एक तो यह है कि जिस्म पर कोई चोट लगती है, ज़र्ब लगती है, तकलीफ होती है, और ये ज़हनी तकलीफ है, ज़हनी सदमा है। एक बिल मिला, वो बड़ा हुआ, फिर दूसरा बिल, फिर तीसरा बिल, फिर चौथा बिल, और बिलों की तादाद लामहदूद होती है। ये तो कते के अंदर शायर की मजबूरी है कि उस बहर के मुताबिक, वजन के मुताबिक मिसरे को बाकी मिसरों के मुताबिक करने के लिए उन्होंने 3-4 बिलों का जिक्र कर दिया, वगरना कई बिल हैं कि जो इंसान को मजबूर और बेबस कर देते हैं आहें भरने पर, बिल बिलाने पर, और इंसान उस जहनी शाक को या उस जहनी सदमे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। वो जीता तो है लेकिन जीने की भोंडी सी नकल उतारता है, वो आराम और सुकून की जिंदगी बसर नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा जो चोट भी लगी है वो पहली से बढ़ के थी, यानी जो भी जहनी शाक सदमा मुझे मिला है वो पहले सदमे से कहीं बड़ा हुआ था, और हर सदमे के बायस मैं तड़प कर रह गया। मुझे इतने ज्यादा बिल मिले हैं और लफ्जी तकरार की कि मैं बिल बिला उठा कि मैं सिर्फ आ ही भर सकता था, मैं सिर्फ रो ही सकता था, जबकि मैं इस महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो एक सफेद पोश आदमी के लिए जिंदगी गुजारना महंगाई के इस दौर में इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए तंज कर रहे हैं कि हुकूमतों को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करें या फिर उसी निस्बत से अपने अवाम को सहूलियात भी फराहम करें। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।